وہی قاتل، وہی منصف، عدالت اس کی، وہ شاہد، بہت سے فیصلوں میں اب طرفداری بھی ہوتی ہے۔ اتر پردیش کے ضلع بہرائچ میں آج سے 14 مہینہ پہلے، تاریخ تھی 13 اکتوبر 2024، ایک دنگا ہوا، ایک فساد ہوا، اور اس فساد کو لے کر اب عدالت کا فیصلہ آ گیا۔ ایک کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے اور 9 کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ ہوا کیا تھا اس دن پورا معاملہ جان لیجئے۔ تاریخ تھی 13 اکتوبر 2024، ہندو سماج کے لوگ مورتی وسرجن کے لیے نکلے تھے اور مہاراج گنج جو ہردی تھانہ کے علاقہ میں آتا ہے، وہاں سے مورتی وسرجن کے لیے جلوس گزر رہا تھا۔ جلوس پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف گانے بجا رہا تھا، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے والے نعرے لگائے جا رہے تھے، مسلمانوں کو چڑھانے کا کام ہو رہا تھا۔ مہاراج گنج کا یہ علاقہ مسلم میجورٹی محلہ تھا۔ مسلمانوں نے آ کر مطالبہ کیا، اذان ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، کچھ دیر کے لیے یہاں پر لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دو، اس طرح کے نعرے مت لگاؤ، خاموشی کے ساتھ جاؤ۔ لیکن اس بھیڑ نے کہا کہ ہم اسی طرح ساؤنڈ جاری رکھیں گے، ہم اسی طرح نعرہ لگاتے ہوئے جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ مورتی وسرجن کے لیے جانے والا جلوس مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا رہا تھا، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے والا گانا بجا رہا تھا۔ راستے میں آگے آتا ہے عبدالحمید کا گھر۔ عبدالحمید کے گھر پر عید میلاد النبی کا جھنڈا لگا ہوا تھا، جس کو آپ اسلامک فلیگ کہہ سکتے ہیں۔ مورتی وسرجن کے لیے جا رہے جلوس میں شامل گوپال مشرا عبدالحمید کے گھر کی چھت پر چڑھ جاتا ہے اور وہ اسلامی جھنڈے کو وہاں سے نکال کر پھینک دیتا ہے اور بھگوا جھنڈا لہرا دیتا ہے۔ جیسے ہی گوپال مشرا نے وہاں بھگوا جھنڈا کو لہرایا، اسلامی جھنڈا کو وہاں سے نکال کر پھینک دیا، مسلمانوں کا غصہ بھڑک گیا اور دونوں طرف سے کہا سنی ہونے لگی۔ مسلمانوں نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ تم لوگ یہاں سے جلوس لے کر جا رہے ہو، زور زور سے گانے بجا رہے ہو، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا رہے ہو، اذان ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، اس کا تمہیں خیال نہیں، اور اب تم نے ہمارے اسلامی جھنڈے کو وہاں سے نکال کر پھینک دیا ہے، جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جس پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ اس جھنڈے کو تم نے اکھاڑ کر پھینک دیا، بھگوا جھنڈا ہماری گھر پر لگا دیا۔ یہ بات بڑھنے لگی، دونوں طرف سے ایک طرف سے کہا سنی ہونے لگی۔ اسی بیچ ایک جگہ سے گولی چلتی ہے، گوپال مشرا کے سینے پر گولی لگتی ہے، جس نے بھگوا جھنڈا لہرایا تھا، اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ دیر رات کو گوپال مشرا کی موت کی خبر کنفرم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ خبر آتی ہے گوپال مشرا کی موت ہو گئی ہے، اس کے بعد بھیڑ اور زیادہ غصہ میں آ جاتی ہے۔ ہندو سماج کے لوگ گوپال مشرا کی لاش کو لے کر سڑک پر آ جاتے ہیں، ہائی وے کو جام کر دیتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ پھر پرشاسن کو پورا کنٹرول سنبھالنا پڑتا ہے۔ لکھنؤ سے ڈی جی لا اینڈ آرڈر امیتابھ یش کو لکھنؤ سے بہرائچ جانا پڑتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں پورے معاملے کو لیتے ہیں، سڑکوں پر اترتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس لاش کو ان کے گھر پہنچایا جائے، اس کی جو آخری رسومات ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اس کے باوجود بھیڑ نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا۔ ایک ہسپتال کو ان لوگوں نے آگ لگا دیا، بائک کے شو روم کو آگ لگا دیا، مسلمانوں کی جتنی دکانیں ملی ان سب میں توڑ پھوڑ کی گئی، ان سب کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد معاملہ کورٹ میں پہنچتا ہے۔ پولیس نے 13 لوگوں کے خلاف نامزد FIR درج کی، ان پر کئی طرح کے مقدمے لگائے گئے، NSA کا مقدمہ بھی دائر کیا گیا۔ ادھر پولیس نے ریڈ مارنا شروع کیا، گرفتار کرنا شروع کیا۔ میڈیا میں خبر چلنے لگی کہ عبدالحمید جس کا گھر تھا، اس کے بیٹے سرفراز نے اپنے ہی گھر کی چھت سے فائرنگ کی تھی، گولی ماری تھی، اور گوپال مشرا کے سینے میں جا کر وہ گولی لگی تھی۔ اس کے بعد اگلے دن پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ سرفراز اور اس کا بھائی طالب پکڑا گیا ہے، یہ دونوں کلیدی ملزم ہیں، یہ دونوں نیپال بھاگنا چاہ رہے تھے، لیکن پولیس نے دونوں کو گھیر لیا، پولیس نے انکاؤنٹر کیا، پاؤں میں پولیس نے گولی ماری، اور اس کے بعد سرفراز اور طالب دونوں پکڑے گئے۔ ان کے علاوہ 13 لوگ جن پر مقدمہ درج کیا گیا، ان سبھی کو گرفتار کر کے جیل میں بند کیا گیا، اور یہ مقدمہ چلتا رہا۔ اسی سال یعنی جنوری 2025 میں UP پولیس نے چارج شیٹ فائل کی، اور چارج شیٹ فائل کرتے ہوئے UP پولیس نے کہا کہ سرفراز نے ہی گولی ماری تھی اپنی چھت سے، اور گوپال مشرا کے سینے میں گولی لگی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس نے بھی کہا کہ عبدالحمید، ان کے بیٹے اور ان تمام لوگوں نے سپورٹ کیا تھا سرفراز کو، یہی تمام لوگ اس وائلنس کے لیے، اس ہنسا کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اور UP پولیس کی چارج شیٹ کے مطابق کل یعنی 11 دسمبر کو
बहराइच कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उस फैसले में जज पवन कुमार शर्मा ने सरफराज को फांसी की सज़ा सुनाई है। उसके अलावा जो 9 लोग हैं उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। सरफराज के अलावा उनके 2 भाई तालिब और फ़हीम को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। सरफराज के वालिद अब्दुल हमीद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उसके अलावा मारूफ अली को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मोहम्मद सैफ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ज़ीशान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। जावेद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। शुएब खान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और इस फहरिस्त में ननकाव का नाम भी शामिल है। ये 10 लोग हैं जिन पर आरोप साबित हो गया, इनको मुजरिम ठहरा दिया गया और उनमें से 9 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, 1 को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और 3 को रिलीज़ कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया। अदालत का कहना है कि उनके खिलाफ मुकम्मल सबूत नहीं मिल सके। अब सरफराज और उनके अलावा बाकी 9 लोगों के पास 30 दिनों से 90 दिनों का मौका है हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने का। फांसी की सज़ा हो गई है, उम्र कैद की सज़ा हो गई है, लेकिन इस फैसले पर उसी वक्त अमल हो सकता है जब हाई कोर्ट से भी इस फैसले को सही ठहराया जाएगा। तो 30 से 90 दिनों का मौका है इन लोगों के पास इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का। कोर्ट में फैसला सुनाए जाने से पहले पुलिस ने तमाम आरोपियों को कोर्ट में पहुंचा दिया था और कोर्ट से जब निकल रहे थे सरफराज और उनके भाई, तो इन लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं, गलत हैं, जो हमारी बात थी उसको नहीं रखा गया, जो सच्चाई थी उसको पेश नहीं किया गया। कोर्ट में, अदालत में भी हमें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। ये कहना है सरफराज के भाइयों का। बहराइच हिंसा और वायलेंस में अब ये तमाम लोग मुजरिम ठहरा दिए गए हैं। इन तमाम के खिलाफ सज़ा का फैसला भी अदालत ने सुना दिया है। लेकिन माजी की तरह ये बात भी याद रख लीजिए, माजी की तारीख़ हिंदुस्तान में कि जितने बड़े बड़े वायलेंस हुए, दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए, लोअर कोर्ट ने, लोकल अदालत ने मुसलमानों को जिन्हें आरोपी ठहराया गया था उन्हें मुजरिम करार दिया, उनके खिलाफ फांसी की सज़ा सुनाई गई, उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सबूत नहीं मिल सका, पुलिस प्रूफ पेश नहीं कर सकी और फिर उन तमाम को रिहा करना पड़ा है। ऐसा ही मामला साल 2006 में लोकल ट्रेन धमाके का मामला है। मुंबई में जुलाई के महीने में 2006 में लोकल ट्रेनों में बम धमाका हुआ, 200 लोगों की हलाकत हो गई। किन लोगों ने बम धमाका किया था, असल गुनहगार कौन है, पुलिस ने, एजेंसी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनको नहीं पकड़ा, बल्कि 13 मुसलमानों को मुंबई और मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल में बंद कर दिया, उन पर UAPA लगा दिया और उनको दहशतगर्द बताया गया। लोकल अदालत ने उनमें से 5 को फांसी की सज़ा सुना दी, बकिया को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन जब मामला बम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। मिल्ला टाइम्स ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी 18 नवंबर को ही, लेकिन एडिटिंग में ताख़ीर की वजह से अब 18 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होगी। आप सब कमेंट में सवाल भी कर रहे थे कब डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होगी। उसका टीज़र, ट्रेलर आ चुका है और इंशाअल्लाह ताला फाइनली 18 दिसंबर को वो डॉक्यूमेंट्री, वो मूवी रिलीज़ होने वाली है। एक और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर लीजिए। और मिल्लत क्लिप, ये मिल्लत टाइम्स का ही चैनल है, तो उसको हमने क्लोब किया है इस चैनल से। सब्सक्राइब के बटन पर जाइए और क्लिक करके मिल्लत क्लिप को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। और आइए मैं आपको एक और अहम बात अब बताने जा रहा हूँ। ज़िला अदालत ने सरफराज को फांसी की सज़ा सुना दी है, इनके भाइयों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गुनहगार सिर्फ सरफराज है? क्या जुर्म सिर्फ सरफराज और उनके भाइयों का है? जुर्म तो दोनों तरफ से किया गया था। भीड़ ने खुद कानून को हाथ में लेने की कोशिश की थी। गोपाल मिश्रा की जान गई, उसको गोली लगी, ये गलत हुआ। गोपाल मिश्रा के साथ जिसने भी ये किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किसी को भी कानून को हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। लेकिन गोपाल मिश्रा ने भी कानून को अपने हाथ में लिया था। वो अब्दुल हमीद के घर पर चढ़ जाता है, इस्लामी झंडा को वहाँ से उखाड़ कर फेंक देता है, भगवा झंडा लहरा देता है। क्या ये जुर्म नहीं है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाना नहीं है? क्या ये कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं है? क्या इसको दंगा भड़काने की कोशिश नहीं कहा जाएगा? जितने लोग जुलूस में थे, तमाम लोग जुलूस में
भड़काऊ गाना बजा रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। क्या ये सही था? ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। 10 लोगों के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया और ये 10 के 10 मुसलमान ही हैं जो लोग जुलूस में फसाद भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, जिन लोगों ने प्रशासन का भी ख्याल नहीं रखा, जिन लोगों ने मामले को यहाँ तक पहुँचाया, जिन लोगों ने बाइक शोरूम में आग लगाया, जिन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ किया, जिन लोगों ने चुन चुन कर दुकानों को जलाया, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं, उनके खिलाफ कोई फैसला क्यों नहीं? अदालत का एहतराम अपनी जगह, लेकिन अदालत के फैसले पर लोग अब सवाल भी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि जो अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ रही थी, जो दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा था, उसी को पुलिस ने चार्जशीट में शामिल कर दिया और उसके बाद उसी पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। बहराइच के एडिशनल जज पवन कुमार शर्मा के फैसले का एक और संगीन मामला है, बल्कि शर्मनाक है। इन्होंने फैसले में मनु स्मृति का हवाला दिया है, वही मनु स्मृति जिसको बहुत लोग जलाते हैं, जिसको इंसानियत के लिए काला धब्बा माना जाता है। उस मनु स्मृति का हवाला देते हुए इन्होंने सरफराज को फांसी की सज़ा सुनाई है और 9 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। एक और बात जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है और आप समझ सकते हैं कि अदालतें किस तरह काम कर रही है। जिस बात को, जिन इल्ज़ामात को बहराइच की पुलिस ने, यूपी की प्रशासन ने अफवाह बताया था, उसको कोर्ट करते हुए फैसला सुना दिया गया। अक्टूबर 2024 में ही पुलिस ने बाज़ाब्ता एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि सब अफवाह है। दरअसल गोपाल मिश्रा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की अफवाह फैलाई गई कि गोपाल मिश्रा को तलवार से मारा गया, उसके नाखून को निकाल लिया गया, उसके जिस्म पर बहुत सारे निशानात थे, उसको बेदर्दी से मारा गया, पूरी शिद्दत के साथ उसको सताया गया। उसकी बीवी ने भी इसी तरह का दावा किया, लेकिन बहराइच की पुलिस ने बाज़ाब्ता अक्टूबर 2024 में ही स्टेटमेंट जारी करके कहा गोपाल मिश्रा की मौत के हवाले से जो दावा किया जा रहा है ये सब अफवाह है, सच्चाई नहीं है। गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हुई, लेकिन उसको तलवार से मारा गया, उसके जिस्म पर बेशुमार निशानात थे, उसका नाखून निकाला गया या उसको तरपा तरपा कर मारा गया। इस तरह का दावा सरासर झूठ है, अफवाह पर मबनी है। लेकिन एडिशनल जज साहब ने इस अफवाह की बुनियाद पर ही फैसला सुना दिया और मनु स्मृति को कोट किया है अपने फैसले में। उन्होंने कहा कि मनु स्मृति में कहा गया कि अगर कोई किसी इंसान को बेदर्दी से मारता है, तरपा तरपा कर मारता है, तो उसको सज़ा देनी चाहिए और तभी रियासत में अदल कायम होगा, स्टेट में निज़ाम बरकरार रहेगा। लेकिन जज साहब से सवाल है कि क्या कानून को हाथ में लेने की यहाँ पहले किसने कोशिश की, किसने स्टेट के निज़ाम के खिलाफ जाकर कानून को अपने हाथ में लिया। बहराइच की अदालत का फैसला आ जाने के बाद गोपाल मिश्रा की वाइफ का कहना है मेरी रूह को सुकून मिल गया है, क्योंकि सरफराज जिसने गोली मारी थी उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। उसने योगी आदित्यनाथ का भी शुक्रिया अदा किया। सरफराज के वालिद का कहना है कि मैंने अपने बेटे को जाने से मना किया था, अगर वो ना जाता तो ऐसा ना होता। उसकी माँ का कहना है कि मेरा घर जो है सोना हो चुका है, मेरे 3 बेटों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट भी आई है कि गोपाल 3 या 4 भाई था और उसके तमाम भाइयों की 25 साल की उम्र से पहले ही मौत हो गई। गोपाल मिश्रा की भी 25 साल की उम्र तक मौत हो गई। 85 दिन पहले ही गोपाल मिश्रा की शादी हुई थी। उसकी बीवी का कहना है कि उसने गोपाल मिश्रा को जाने से मना किया था, उसने बाइक की चाबी को छुपा कर रख दिया था। इसके बावजूद गोपाल मिश्रा चला गया, इस भीड़ का हिस्सा बना और उसकी जान चली गई। अब ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा, लेकिन एक सवाल ये भी कि इससे पहले भी इस देश में कई लोगों की जानें गई है, लोगों ने बेगुनाह को मारा है, मॉब लिंचिंग की है, अखलाक की हत्या कर दी गई झूठे आरोप में, और उस आरोप की भी कोई सच्चाई नहीं। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही अखलाक की मॉब लिंचिंग के केस को बंद कर दिया है, फाइल को क्लोज कर दिया है। राजस्थान के अलवर में पहलू खान की मॉब लिंचिंग कर दी गई, बेदर्दी से भीड़ ने मार दिया। मारने वाली भीड़ के खिलाफ क्या फांसी की सज़ा हुई, मारने वालों को क्या उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। देश में मॉब लिंचिंग के सैकड़ों केस आ चुके हैं और जब ये केस अदालत में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है,
तो मामूली सी सज़ा सुनाई जाती है और बाद में ये सब के सब बरी हो जाते हैं। एक तरफ कुछ केसेस में फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा और दूसरी तरफ का केस संगीन है, भयानक है। इसके बावजूद वहाँ 5 साल 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है, फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती, उम्र कैद की सज़ा नहीं सुनाई जाती। और इसी वजह से पिछले दिनों जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने अदालत पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक हासिल नहीं है। लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों पर तो हमेशा सवाल उठते ही रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर गुजारिश है सब्सक्राइब कर लीजिए मिल्लत क्लिप्स को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोमोट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।